So this article is saying कि इसके free movement regime के benefits were more compared to the challenges. So it is saying कि challenges अभी जो reason side के जा रहे हो of withdrawing it is firstly कि we talk about कि northeastern countries like Myanmar, Thailand and Laos जो golden triangle वो form करते हैं in terms of narcotics trade. So that was being misused and happening through the porous borders that India share with Myanmar. Second is the insurgents group they were intruding into India, and we saw कि जो ethnic violence हुई in the state of Manipur. So that situation was somewhere misused by them. So that led to more violence, and so this is the second main reason. So यहाँ पे लिखा गया कि जो rights है of the ethnic community, the tribal community, specifically in the states of Nagaland and Mizoram. So अब उसको हम कैसे protect करेंगे? Because अगर हम हिस्टोरिकली बात करते हैं तो दे हैव वी कैन से कि कल्चरल टाइज हैं, उनके हेरिटेज टाइज हैं with the people across the border. So how we can ensure कि that remains protected and that right still remains with them. So security situation we can say overall is the main reason. So Kuki-Zo community जो हम बात करते हैं, तो Nagaland and Mizoram is opposing the withdrawal of the free movement regime. Chin community is one of the tribal communities. And we also saw a case in 2021, जो military coup हुआ in Myanmar. So that has also led to influx of refugees. So that is the whole debate around. Discuss इसको. We can move forward. एक बार रोशिक आप इसको ओवरव्यू बता दीजिए, ये जो पूरा मैटर था. अरे मैं बोलना चाह रहा है कि फ्री मूवमेंट रिजीम था. इट वाज फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग नियर द बॉर्डर रीजन ऑफ बोथ इंडिया एंड म्यांमार. तो क्या प्रॉब्लम हुआ कि जो भी लोग रहते थे वहां से, मतलब म्यांमार में, तो देवर यूजिंग द वेपन्स, फिर बाकी जो ड्रग ट्रैफिकिंग एक्सेट्रा, टू डिस्टेबलाइज द रीजन, मणिपुर, नागालैंड. तब फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने उसको बैन कर दी, मतलब बंद कर दिया अभी हाल फिलहाल. ये तो क्वेश्चन उठता है कि व्हाट अबाउट द ट्राइबल्स राइट, व्हाट अबाउट द नेबर्स वो आर रिसाइडिंग, उनको जरूरत है, फिर पीपल पीपल कांटेक्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन उठता है. ये हाँ, इसी लाइंस पे हम डिस्कस कर रहे हैं. तो प्रवेश, प्लीज ट्राई टू इंश्योर कि वी आर नॉट रिपीटिंग ऑन थिंग्स. Then recalibrating merit in the age of artificial intelligence. So ये हमने बात करी कि artificial intelligence important है, but उससे भी पहले जो benefits हैं AI के, to leverage on that human intelligence is also equally important. So अब AI की age में आप कैसे merit based मतलब कैसे आप आगे उसको merit को आगे लेके चल सकते हो, given we are depending upon AI. So we are seeing कि it is impacting our again innovative and creativity ideas. So that is one of the challenges. तो क्या AI को बोल सकते हैं disruptive factor? तो it depends upon कि हम उसको use कैसे कर रहे हैं और what is the purpose of use. So on that basis we can say disruptive factor हो सकता है, नहीं हो सकता है. जैसे अभी हमने कुछ देर पहले बात करी कि elections के context में जो misinformation है that is being spread and AI has its role. So that is a disruptive factor. And so overall जो हमने बात करी regulation and जो nuances थे, that is the same thing. So recalibrating meritocracy in the face of AI advancements demands a sophisticated understanding, interplay between technology and the societal structures. So how we can keep the societal structures intact and ensure कि AI is not negatively impacting them. So it is important कि AI is used to augment human capabilities as an aid. जैसे हम बात करते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करेगा AI. So that is an example of augmentation. क्या समझे मानसी से ऑगमेंटेशन से, अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखना है? Augmentation में like suppose you have to make any presentation, तो उसमें AI can help in reducing the time to make that presentation. So that is augmentation of the human capabilities. Like you're saving on time, तो आप उस टाइम में और कुछ भी वर्क कर सकते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है. Now talking about
Army upgrades the firepower in eastern Arunachal Pradesh near the line of actual control. So in this picture we can see this is the artillery gun. howitzer हमने कल भी बात करी थी ये बता howitzer gun. हमको हाँ, M777 ultralight howitzer gun. यूएस आई थिंक हाँ, यूएस का है ये. फिर और चेतक इसमें चीनूक द्वारा पड़ा था ये भी यूएस का Chinook, हाँ, हेवी लिफ्टेड this Chinook heavy lift helicopters है, so in terms of lifting, हाउइजर को लिफ्ट करके लेके जा सकते हैं टॉप एरिया पर heavy जहाँ पर lift ट्रक है. में पहुंच सकते हैं कहीं नहीं तो चीनूक पहुंच सकते हैं। और M777 gives significant flexibility in employment options for the long range firepower. So as it can be transported by Chinook, same thing. Ghatak commandos of the army in full combat gear being briefed. So इसमें और machine guns जो है like Negev light machine guns, rifles mentioned है, SIG, new generation equipment जो हम बोल सकते हैं, SACO TRG-42 sniper rifles, tactical drones. So ओवरऑल ये बोल सकते हैं वी आर डिपेंडेंट ऑन वेरियस कंट्रीज फॉर इंपोर्ट यूएस इजराइल हर जगह से AK-47 रशिया SIG-17 ये आई थिंक M16 यूएस तो डिफरेंट अलग अलग जगह से And all इंपोर्ट this कर acquisition and procurement is done by the Ministry of Defense, Department Defense Acquisition Council, which is headed by the Shri Defense Minister of India. और ये किस तरीके से होता है, तो इसमें जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज में अलग अलग देखते हैं BOT मॉडल, HAM मॉडल, एन्युटी टर्मिनेशन मॉडल, तो यहाँ पर होता है AON, जिसको बोला जाता है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी हमारी कैपेबिलिटीज तो है बनाने की, लेकिन कुछ ऐसी नेसेसिटीज है जिसकी वजह से हमको उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इसी में होता है एक नेगेटिव लिस्ट, जिसके अंदर बहुत सारे जो ऐसे आइटम्स होते हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट के, जिनको इंपोर्ट उनके ऊपर बैन कर दिया जाता है, जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज होती हैं, स्पेशली जो MSME सेक्टर में आजकल आ रही हैं, जो डिफेंस सेक्टर में, वहां से लिया जाता है। और अगर हम बात करें कितना कैपिटल एक्विजिशन बजटरी आउटले है, तो 2.23 लाख करोड़। okay, so next topic is about जीनोम सीक्वेंसिंग, यहाँ स्पेसिफिकली एंसेस्टर्स जीनोम्स की बात हो रही है. सो वो कैसे मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम को हेल्प कर सकता है, उसको अगर हम स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो दिस इज ओवरऑल जो जिस्ट इस आर्टिकल की है. तो ADNA एक टर्म हमें पता होना चाहिए. ADNA मीन्स एंसेस्टर्स DNA या एंशिएंट DNA. सो दिस इज दी वन थिंग. सो यहाँ बोला गया कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, अगर हम उसको स्टडी करते हैं स्पेसिफिकली एंसेस्टर्स का, तो फर्स्टली हमें पता लग सकता है कि उस टाइम पे क्या हेल्थ कंडीशंस थी या जो डिजीजेस थे. सो वो हमें पता लग सकते हैं. क्या अभी हम कुछ सिमिलर काइंड ऑफ डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, तो वी कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर सिचुएशन, यानी अनफोर्सीन सिचुएशन. सो दिस इज वन थिंग. क्या उनका लाइफस्टाइल होता था उस टाइम पीरियड पे, जैसे आज हम देख रहे हैं कि because of the sedentary lifestyle, the non-communicable diseases, lifestyle diseases are on the rise. So it can help in reducing that number in today's time. तो genome sequencing, human genome sequencing एक जो project भी है, that is also going on. So that's there. And genome sequencing में क्या, what is the thing? तो DNA जो उसमें जेनेटिक मेकअप होता है हर इंडिविजुअल का, जो यूनिक होता है, तो उसकी सीक्वेंसिंग जो होती है, जैसे हमने बात करी एडिनो, गुआनिन, थायमिन एंड साइटोसिन, तो इनका सीक्वेंस देखा जाता है और हर एक इंडिविजुअल में ये डिफरेंट होता है. तो इसको मैपिंग किया जाएगा एंड इट वुड बी स्टडीड. दैट्स हाउ इट कैन हेल्प इन द हेल्थ केयर सेक्टर आल्सो. तो अगर देखें कि जीनोम सीक्वेंसिंग कैसे होता है, तो सबसे पहला इट इज अ लैब मेथड, जिसके अंदर क्या मैटर किया जाता है, इसके अंदर देखा जाता है कि जो पूरा का पूरा जेनेटिक मेकअप है, जो DNA का सीक्वेंस बन रहा है आपकी बॉडी के अंदर, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है हर तरीके के ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके क्या सेल टाइप बनेंगे, इससे स्पेसिफिक डिसीज को ट्रीट किया जाता है, जिसके अंदर रेयर डिसीज आ गई, कैंसर आ गया। इसके अलावा जो मेथड है, मेथड इज क्लोन बाय क्लोन मेथड, और शॉटगन सीक्वेंसिंग होती है, जिसके अंदर जो स्पेसिफिक टारगेट्स होते हैं उनको अटैक किया जाता है टू डील सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स एंड पर्टिकुलरली द डिसीजेस. सो दिस इज अबाउट जीनोम सीक्वेंसिंग. थैंक यू सो मच. यू कैन मूव और फॉरवर्ड. पीटी से रिलेटेड एक फैक्ट है यहाँ पर कि फ्रॉम अराउंड 50,000 years ago when modern human Neanderthals and Denisovan coexisted. तो डेनिसोवन क्या है, PT19 ने पूछा था हाँ, 2019 ह्यूमन. human हाँ. fossil. तो ऐसे पता लग सकता है कि कौन से मटेरियल से यूज करते थे, टूल्स कहाँ रहते थे, माइग्रेशन कहाँ से हुआ, उस समय में कौन कौन स्पीसीज थे. तो सब पे एक
हाईलाइट कर सकते हैं, एंसेस्ट्रल डीएनए इसको बोलते हैं। और एक और चीज है कि रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड जो है उसको हम यूज कर सकते हैं ओनली टू नो द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 45। 50,000, हाँ 45 to 50,000 ओल्ड फॉसिल्स। उससे पुराने के लिए यूज नहीं कर सकते। एंड ऑयल स्पिल्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्टली जो इमेज है कहाँ की है, तो टोबागो आइलैंड, ट्रिनिडेड, तो वहाँ की पिक्चर है। एंड कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं ऑयल स्पिल्स को, तो ऑयल स्पिल्स अगेन इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स बिहाइंड द ocean pollution, and direct impact होता है on the marine life because it leads to more acidification. So breathing या intrusion of जो sunlight है, availability of oxygen है, वो कम हो जाता है। So that's how it leads to death of the marine life, the biodiversity there. We've talked यस। about कि bioremediation हम कर सकते हैं to treat, but again वो एक slow process है। So that is one of the solutions, or we are seeing ki again, this is also one of the industrial disasters. So Industrial Disaster Safety Act India में है, and we can also look into ऐसा कोई UN convention on this. तो इवन जब हम ग्रीन शिपिंग की बात करते हैं तो दैट इज ऑल्सो ऑयल स्पिल्स होती है शिप्स के थ्रू भी, जो कंटेनर्स लेके जाते हैं। एंड सेकेंड हो सकता है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज विच आर लोकेटेड क्लोज टू द कोस्टल एरियाज, जैसे अभी हमने रिसेंटली चेन्नई में देखा था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री। सो दो मेन रीजन हो सकते हैं। तो इसका जो पहला रीजन आपने बताया, उसके ऊपर जो इंडस्ट्रियल लेड है, उसके ऊपर हमारा इंटरनेशनल मोनिट जो आईएमओ है, उसका एक कन्वेंशन है जिसको बोला जाता है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ऑयल पोल्यूशन प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस एंड कोऑपरेशन, 1990 में आया, जो कि बताता है कि इंटरनेशनल कंट्रीज किस तरीके से आपस में म्यूचुअली असिस्ट करेंगी अगर इस तरीके से कोई मेजर ऑयल स्पिल की एक्टिविटी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल श्रीलंका में देखने को मिला। दूसरा, जब आपने बताया कि जो शिप्स होते हैं, कमर्शियल वॉयजेज होते हैं, जब उनका ऑयल स्पिल हो जाता है तो क्या कन्वेंशन है, तो उसके लिए हमारे यहाँ सिंगापुर कन्वेंशन। तो यू कैन मूव फॉरवर्ड नाउ। एक और है, सिंगापुर का। बंकर कन्वेंशन, 2021, मतलब 2001। वो बात करते बंकर। हैं कि, हाँ, BUN की ईयर, बंकर ठीक है। कन्वेंशन। वो बात करते हैं कि अगर ऐसा ऑयल स्पिल हुआ है तो फिर लिमिट कैसे करें, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी किसका होगा, कंपनीज का होगा, कैसे करें, पेनल्टी कैसा होगा, ओवरऑल उससे डील करता है ऑयल पोल्यूशन से। जो डैमेज, जो पीपल हु हैव सफर डैमेज कॉज बाय ऑयल स्पिल, उनको कैसे मिलेगा, फिर फ्यूल कैसे यूज होना चाहिए, इफेक्टिव कंपनसेशन, प्रॉम्प्टनेस, ये बात होगी। ठीक। हम्म। सो यहाँ साइकिल ऑफ साइंस की अगर हम लाइफ, बात करें, इसमें हाँ। एक ही दो इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल रिदम। आप क्लॉक साइकिल होते हैं, इसलिए बोलते हैं आप एक ही टाइम में सोइए, एक ही टाइम में उठिए हर बार। उससे आपका बेटर फंक्शनिंग ऑफ द मेटाबॉलिक, हार्मोनल फंक्शनल, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनर्जी लेवल, स्ट्रेस रिस्पॉन्स थ्रू आउट द डे सही रहता है। तो दो टाइप के स्लीप होते हैं, रेम होते हैं और नॉन REM। तो रैपिड आई मूवमेंट अगर लगातार हो रहा है, इसका मतलब यू आर इन ड्रीमिंग फेज। तो आई मूवमेंट होता है तो ड्रीम करते हो। और नॉन ड्रीम, इसमें ड्रीम नहीं होता है, तो आपका अगर ब्रेन मैपिंग किया जाएगा तो आपका जो ग्राफ है बहुत क्लोज टू जीरो टाइप रहेगा। ड्रीमिंग में आपका पूरा साइन वेव जैसा रहता है। तो नॉन ड्रीम स्लीप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिकली और कॉन्सेंट्रेट देयर मेमोरी। और एक आप डीप स्लीप जिसको बोलते हैं, नॉन ड्रीम। तो और इवन जो स्ट्रेस लेवल्स की बात है, ये इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज थ्रू द डे। हम्म, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और अगेन कीपिंग यू मोर पॉजिटिव, उसमें भी कहीं ना कहीं रोल है। और इसकी चार स्टेजेस होती है। पहला जो उचित ने बताया, जिसके अंदर 5 से 10 मिनट का टाइम पीरियड होता है। दूसरी स्टेज होती है जब आपकी जो हार्ट बीट होती है और आपका जो माइंड होता है वो एक्टिवेट होना शुरू होता है, या फिर उसके अंदर जो एड्रेनल का बताया था एक दिन आपने। और तीसरी स्टेज होती है जिसमें आपकी मसल रिलैक्स करती है, बीपी आपका और ब्रीदिंग रेट जो है आपकी वो नॉर्मलाइजेशन होता है। और जो लास्ट स्टेज होती है जब आपका ब्रेन जो होता है मोर एक्टिव हो जाता है और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, इमोबिलाइज हो जाती है, और तब आपको ड्रीम्स आने शुरू होते हैं। तो दीज आर द 4 स्टेजेस ऑफ स्लीप। और हमारे यहाँ हम्म, स्लीप का नेचुरल साइकिल भी होता है जिसमें बोला जाता है कि एक सेट ऑफ टाइम पीरियड्स, 4 to 4.5 आवर्स का एक टाइम पीरियड होता है जिसमें क्वालिटी स्लीप होती है। उसके बाद हाँ। दोबारा से ड्रीम्स ली जाती है, फिर दोबारा से वो शुरू होता है। हम्म, ये अच्छा डिस्कशन था स्लीप से रिलेटेड। हम्म। आई विल शेयर। तो इसमें आता है वेरिएबल ज्योमेट्री।
अब इसमें इंडिया का सबसे स्टैंड क्या रहा है कि इंडिया इज नॉन वेस्ट और एंटी वेस्ट नहीं है इंडिया। तो ये जो एग्जैक्ट वर्ड है इसको वी कैन नोट डाउन कि डिस्टिंक्शन होता है। नॉन वेस्ट मतलब इंडिया इज नॉन वेस्ट, इंडिया चाहता है कोऑपरेट करे, इंडिया वांट टू कोलैबोरेट विद अदर कंट्रीज, बट इंडिया इज नॉट एंटी वेस्ट जैसे लोग बोलते हैं। और जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं बोलते हैं कि इंडिया हैज बिकम पार्ट ऑफ द एससीओ, ब्रिक्स एक्सेट्रा, दे आर कोलैबोरेटिंग विद द ग्लोबल साउथ। और जो कैरेक्टर है विद इंडिया विद रिगार्डिंग टू द इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया, तो बहुत कमेंटेटर बोले कि इंडिया इज एंटी वेस्ट, लेकिन इंडिया ने इसको ट्वीट किया, इंडिया इज नॉन वेस्ट। तो नॉन वेस्ट एंटी वेस्ट फर्क, भाई ये इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि इंडिया हैज अ वेरी फ्लेक्सिबिलिटी इंटरनेशनल रिलेशन, वेरिएबल ज्योमेट्री, रिजिड ब्लॉक्स। इंडिया बात नहीं करते कि वी हैव टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू रिजिड ब्लॉक। इंडिया टॉक्स अबाउट कोऑपरेशन बिटवीन द ब्लॉक्स, हर एक बीच के ब्लॉक के बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, कोई एग्जैक्ट पोलैरिटी नहीं होना चाहिए। तो मल्टीपोलर बात करता है, बाईपोलर बात नहीं करता है, ना कि यूनिपोलर बात करता है। तो हर एक कंट्रीज का अपना अपना सॉवरेन थिंकिंग होता है विथ रिस्पेक्ट टू द कि उनको क्या चाहिए, जिसको रियलिज्म बोलते हैं। एथिक्स में भी, इंटरनेशनल एथिक्स में रियलिज्म कॉन्सेप्ट आता है, इसमें आता है, और आईआर में भी आता है। तो जो रियलिज्म है कि आपका सॉवरेनिटी के हिसाब से चलेंगे, आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है, उसी के हिसाब से आप अलाइन करेंगे ओवरऑल जो भी रिलेशनशिप हो विद एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। यही था। एंड यहाँ पे ये स्टेटमेंट से क्या मीनिंग है हमारा कि वेरिएबल ज्योमेट्री इन द करंट ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट? वेरिएबल ज्योमेट्री मतलब रिलेशनशिप बहुत वेरिएबल है, हर एक कंट्री से डिफरेंट है। हो सकता है कि आज चाइना के साथ हमें डील करना पड़े विथ ऑन द इश्यू हुआ था क्लाइमेट चेंज, ई कॉमर्स, डेटा सॉवरेंटी से लेकर के फिर आईपीआई का बात करते हैं उसके साथ, फिर पीस क्लॉज में बात करते हैं, डब्ल्यूटीओ बात करते हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में बात करते हैं, ग्लोबल साउथ लीडरशिप बात करते हैं। लेकिन वेरिएबल क्यों? उसके साथ साथ ही क्वाड के हिसाब से अगर बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट हाउ टू कंटेन चाइना इन साउथ ईस्ट एशिया, हाउ टू कंटेन चाइना इन इंडो पैसिफिक। तो वेरिएबल ज्योमेट्री कुछ जरूरी नहीं कि कोई एग्जैक्ट स्ट्रिक्ट ब्लॉक हो, डिवीजन रहे, ईस्ट वर्सेस वेस्ट या सोवियत वर्सेस यूएस और पूरा डिवीजन, कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट, ऐसे नहीं। सबका अलग अलग होगा, मॉडरेट होंगे, वेरिएबल होंगे। इसलिए रिजिड ब्लॉक लिखा हुआ है, रिजिड ब्लॉक डिवाइड करने का रोल नहीं रहा है इंडिया का कभी भी। इंडिया ऑलवेज टॉक अबाउट मल्टीपोलर वर्ल्ड, इसलिए क्वाड में भी जाते हैं और एससीओ में भी जाते हैं। हाँ, एक और एक जो रिलेटेड टू पीएसआईआर है कि देयर इज डिक्लाइन ऑफ लेफ्ट, सीपीआई और सीपीआई उनका सीट घटते जा रहा है। 52 हाईएस्ट आया था 2008 में, फिर कम हो गया, वीकनिंग ऑफ द कांग्रेस एग्जिस्टिंग ऑपोजिशन पार्टी, देयर इज न्यू राइज ऑफ द ट्रेडिशनल राइट। तो उनके पास और डिफरेंट होता है थिंकिंग विथ रिस्पेक्ट, वो ग्लोबल बात नहीं करेंगे, ग्लोबल लेफ्टिज्म होता है, ग्लोबल मार्क्सिज्म होता है, लेकिन ग्लोबल राइट कभी नहीं हो सकता क्योंकि राइट ऑलवेज टॉक अबाउट अ ट्रेडिशनल एस्पेक्ट। तो हर एक राइट डिफरेंट होगा, राइट मतलब राइट आइडियोलॉजी का बात करते हैं, लेफ्ट एंड राइट, तो उनका डिफरेंट होगा, देट दे विल टॉक अबाउट द स्पेसिफिक इश्यूज। तो कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट हर एक कंट्री में राइज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इटली में जो बात होता है, फिर फ्रांस में, फिर अब यूके में भी बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी, फिर ब्राजील लूला लेफ्ट है लेकिन वो भी एक ट्रेडिशनल राइट उनका रहता है ओवरऑल। फिर अर्जेंटीना का बात हो गया मिली, फिर विक्टर ओबरान, हंगरी हो गए, पोलैंड हो गए, फिर रशिया तो है ही, उसके बाद फिर अलग अलग कंट्री में भी। तो उसके बाद फिर इसलिए इंडिया बात करता है कि कैसे हम लोग सॉवरेंटी के हिसाब से डील करें, हर एक कंट्री इंडिविजुअल है। When we are discussing about the talks regarding the farmers protest, they were demanding over the legalization of the MSP. तो इंडिया ने बोला कि टॉक्स इज गोइंग ऑन, हुआ है अभी, और दे आर फोकसिंग ऑन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। और दूसरा की इंसेंटिव है इन द अदर क्रॉप जैसे पल्सेस विल बी इंक्रीज्ड, तब जाके से रिजॉल्व हो सकता है इशू। तो नाफेड काम कर सकते हैं, दे विल साइन कौन, नाफेड इंपॉर्टेंट प्रोक्योरमेंट बॉडी फॉर द पल्सेस। एफसीए जो होते हैं इट इज ए प्रोक्योरमेंट बॉडी फॉर द व्हीट एंड राइस, नाफेड पल्सेस। So they will sign contract with the for 5 years with the farmers at buy their produce at the MSP. जैसी सिमिलरली कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऐसे हम लोग डिटेल में किए थे विद रिस्पेक्ट टू द टी प्लांटेशन बोर्ड, टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड, हर एक बोर्ड अलग, जूट बोर्ड एक्सेट्रा, स्पाइस बोर्ड, कॉयर बोर्ड,
तो वैसे ही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू कॉटन, तो दे विल आल्सो बाय द कॉटन एट एमएसपी। इंडिया में अभी कैसे होता है डिफाइन, तो सीएसीपी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में आते हैं, और आई थिंक सीएसीपी इज स्टैट्यूटरी बॉडी, मानसी। राइट, स्टैट्यूटरी है। तो वो बात करते हैं A2 प्लस FL एंड C2। A2 होता है कि आपका इनिशियल कॉस्ट कैश ऑन काइंड इनकर्ड बाय द फार्मर्स, जो भी खरीदने में होता है, फ्यूल, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, केमिकल एक्सेट्रा। फिर FL मतलब कि उनका जो फैमिली लेबर है, बच्चे को काम कराने भेज रहे हैं या फिर वाइफ हो गई या खुद कर रहे हैं, तो फैमिली लेबर। तो A2 मतलब कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट, FL। इस पर फिर डिपेंड करता है हर एक स्टेट के हिसाब से, और इंटीग्रेट किया जाता है स्टैटिस्टिक को, फिर कॉस्ट तय होता है, C2 इसको बोलते हैं। लेकिन MS स्वामीनाथन बोलते हैं कि जो C2 है इसका 1.5% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, 150% ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ जी, जो 150 A2 ज्यादा मिलना चाहिए, 50% 50% तो ज्यादा मिलना चाहिए, और प्लस 150 तो बहुत हाँ ज्यादा। 50%, हाँ 150% ज्यादा मिलना चाहिए C2 ऑन द टॉप ऑफ A2 प्लस FL। तो इनकम नॉट MSP। तो इसमें बात करते हैं कि ठीक है कि कॉस्ट A2 प्लस FL होता है, फिर कॉस्ट इज C2 इज रफली 20-30% ऑफ द क्रॉप्स। तो उसे लॉन्ग टर्म रेन्यूमरेशन नहीं दिया जाता है। सिमिलरली अगर मनरेगा में देखा जाए तो मिनिमम वेज 700 रुपीज है, फिर पेंशन है, सब लोन पे भरते हैं, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं, तो ओवरऑल हाई इनकम पर फोकस कर सकते हैं। हाई इनकम कब होगा, तो इसमें इनका आर्गुमेंट है, दो आर्गुमेंट है इसमें ओवरऑल आर्टिकल में। वो बोलते हैं कि 23 कमोडिटीज में सिर्फ दे रहे हैं, तो इसका मतलब जो 23 कमोडिटीज है बाद में जो होंगे हाई वैल्यू प्रोडक्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें इंसेंटिव कैसे मिले, तो उसमें बढ़ाना चाहिए। तो मोर देन 23 क्रॉप इंक्लूड करना चाहिए MSP के अंदर में। इनका एक और यहाँ पे व्यू सीएसीपी एडवाइजरी है, स्टैट्यूटरी नहीं है, एडवाइजरी है सिर्फ। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में दे एडवाइस द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। राइट। तो उस फॉर एग्जांपल लाइव स्टॉक और हॉर्टिकल्चर जो 50% ऑफ एग्री प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनको MSP में नहीं दिया जाता है। तो अगर ओवरऑल अगर चाहिए फॉर द बेटर रेम्युनरेशन ऑफ द फार्मर्स, वी नीड टू इंक्रीज MSP फॉर मोर देन 23 क्रॉप्स। ऐसा एक इनका रहा है। दूसरा रहा है कि एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है कि बैन कर दो, स्टॉक लिमिट कर दो। ECA के अंदर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955, स्टेट इंटरवेंशन इनटू द मार्केट स्फीयर to regulate the price, to regulate the prices, to reduce the volatility of the prices for the consumer। एग्जाम्पल ऑनियन के लिए किया जाता है एक्सपोर्ट बैन, ब्रोकन राइस बांग्लादेश के एक्सपोर्ट बैन, वीट का किया जाता है एक्सपोर्ट बैन, फिर टॉप में किया जाता है एक्सपोर्ट बैन, और फिर इंटरनल भी एथेनॉल भी यूज किया जाता है शुगर केन को, उसमें भी बैन कर दिया गया। तो इंटरवेंशन इसको हटा देना चाहिए। स्टॉक लिमिट ऑन द प्राइवेट ट्रेड, उससे क्या होता है कि प्राइवेट ट्रेड दे हैव द लेस इंसेंटिव टू गिव इन्वेस्टमेंट इन द कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी। उनके पास स्टॉक लिमिट कर दोगे तो उनको रहेगा कि क्यों इसमें स्टॉकिंग क्यों करे बिना मतलब का। तो फिर एक तरह से ये हटाना चाहिए। फिर देखा हुआ कि अब अनलोडिंग द व्हीट एंड राइस, स्टॉप अनलोडिंग व्हीट एंड राइस इन द मार्केट प्राइस बिलो द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उसे व्हीट एंड राइस साइकिल टूटेगा। तो ये 4 एरियाज था जहां पर इन्होंने रिकमेंड किया कि And this is a statutory panel. क्या हुआ ये स्टैट्यूटरी पैनल ही होता है। CAC पे ना। हाँ जी। एक्ट कौन से एक्ट के अंदर बना, विकिपीडिया बोल रहे स्टैट्यूटरी नहीं है, ओनली एडवाइजरी है। आप विकिपीडिया से हटके देखो मानसी, 3-4 जगह लिखा हुआ है, इट इज अ स्टैट्यूटरी पैनल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज आल्सो enjoys the role of expert body, advisory body। और जो एक्ट 1985 के अंदर जब इसका रीनेमिंग हुआ तब इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। सो सिंस 1985 इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो एक्ट यहाँ पे आई थिंक एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन एक्ट है वो 1962। 1962 वाला एक्ट है। हाँ ठीक है। तो ओवरऑल इसमें ये 4 बात करिए। उसके बाद दूसरा बोलते हैं कि वी हैव टू रीविजिट द रीओरिएंटेशन टुवर्ड्स द प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। आप जब सब्सिडी देते हो तो उससे क्या होता है कि देयर इज अ हाई मिसयूज बढ़ जाता है विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर। उसको कम करने के लिए
आप बोल सकते हो कि आप स्टार्टिंग में आप फंड दे दो, डीबीटी कर दो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फॉर एग्जाम्पल पीएम किसान, 6,000 रुपीज मिल जाएगा आपको 3 टाइम। तो फिर प्राइस इंसेंटिव, लोन, अफोर्डेबल लोन रादर देन टोटल फॉर्म वेवर। आप लोन के जो इंटरेस्ट रेट है उसको वेव कर दो। अगर 1 लाख रुपए आज लोन दिए तो मेरे को 1 ही लाख चुकाना है, लेकिन ऐसा नहीं करो कि 1 लाख है तो अगला है 0। तो एक इसको टाइम बढ़ा सकते हो, इंटरेस्ट 0 कर सकते हो, कुछ इनका रहा। ये कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ चीता के हिसाब से देखा जाए तो सर्वाइवल रेट बहुत कम रहते हैं इनके, और इंक्लोजर के अंदर में रहते हैं तो उनका जो जेनेटिक ओरिएंटेशन है वो डाइवर्स नहीं है, इसी कारण देयर इज इंक्रीज ऑफ डेथ। और जो सेरेंगेटी नेशनल पार्क और बाकी जगह में थे तो दे आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो देर इज लॉस ऑफ हेयर और फिर डिजीजेस। तो IRDAI, बीमा सुगम टू ऑफर फ्री सर्विसेज टू कंज्यूमर सेज IRDAI। IRDAI का रोल रहा है कि बीमा सुगम मतलब इंडिया में देखा जाता है कि बहुत कम परसेंटेज ऑफ इंडियंस है दे आर अप्लाइंग फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे कोई भी जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस। तो उसको बढ़ाने के लिए दे आर फोकसिंग ऑन सर्विस बीमा सुगम, इनोवेशन, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, स्ट्रीमलाइनिंग कैसे किया जाए पूरा इंश्योरेंस वैल्यू चेन, और एक विकसित भारत जो सपना है 2047 का उसको अचीव कैसे करें। सिंगल प्लेटफॉर्म में सर्विस दिया जाएगा, ऑल द इंश्योरेंस कंपनी विल ज्वाइन द प्रपोज प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म होगा, वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे, DPI जिसको बोलते हैं बीमा सुगम, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इंटरऑपरेबिलिटी प्लेटफॉर्म, हर एक कंपनी इस पर आएंगे, ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा, क्लेम्स होगा, सेटलमेंट ऑफ द इंश्योरेंस। तो ई गवर्नेंस का एग्जांपल है, ये एग्जांपल है कि आप एक नोड से जोड़ करके बाकी सबको स्ट्रीमलाइन कर रहे हो, सीमलेस सिटीजन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, सिटीजन फ्रेंडली सर्विस प्रोवाइड कर। भाई दूसरा इसमें की हाईलाइट ऑफ दिस थिंग इज इंडिया में जो भी स्टार्टअप कल्चर इट इज मोस्टली ड्रिवन बाय द फॉरेन कैपिटल, 85%। सिर्फ 15% ही है जो इंडियन कैपिटल है। तो इसमें बोलना चाह रहा है कि 15% ज्यादा करिए, उससे क्या होगा, फॉरेन कैपिटल में प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको क्विक रिटर्न चाहिए, जल्दी से प्रॉफिट, और फिर वो भाग भी सकते हैं ड्यू टू अनस्टेबिलिटी, ऐसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997 में पता। अब इंडियन कैपिटल रहेंगे तो लॉन्ग टर्म जो इंडिया सपना है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेट डीप टेक इकोसिस्टम फॉर्मुलेट करने के लिए, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बात करने के लिए, तो उनका एक प्राइड है, उनका एक पेट्रोटिज्म है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन स्टार्टअप, कैसे इंडिया को आगे बढ़ाए, तो वो के कारण वो रुक सकते हैं और ओवरऑल डेवलप करें। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो बाहर कंपनीज होते हैं LIC पेंशन फंड दे इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप US में, तो इंडिया में भी LIC पेंशन फंड लार्ज एंटरप्राइजेस ऑल मस्ट स्टार्ट पुटिंग मूवमेंट इनटू द स्टार्टअप फंड इन इंडिया। तो तो यहाँ पे दो कि चैलेंजेस हम बोलते हैं कि होता है जब कैपिटल फ्लाइट होती है, आउट फ्लाइट होती है इंडिया से, तो वन इज रुपी डेप्रिशिएट्स, उसके वजह से इंपोर्ट्स बिकम मोर एक्सपेंसिव, और जो सेकंड था कि एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी। हम्म अब गवर्नमेंट फ्लैगशिप इनिशिएटिव, क्रिएशन ऑफ फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, इट इज मैनेज बाय सिडबी। सिडबी का रूल रहा है नाम से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो कौशिक, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर चैलेंज क्या है इंडिया के अंदर? ठीक है, वो पहले वाला कुछ आर्टिकल में था। ठीक है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। सबसे पहला है साइबर सिक्योरिटी, दूसरा रेगुलेटरी कंप्लायंस, तीसरा कंपटीशन, इसके बाद डिजिटल डिसरप्शन होता है, फ्रॉड डिटेक्शन होते हैं, और कस्टमर्स की इनस्टेबल एक्सपेक्टेशंस। ये कुछ चैलेंजेस हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इसको थोड़ा सा और, अगर ये तो हो गया कि ब्रॉड एरियाज हो गया, उसके अंदर में जाना है साइबर सिक्योरिटी में कैसे। एग्जाम्पल कि आपको नहीं पता था इंश्योरेंस क्लेम जो फेक इंश्योरेंस ऐप रहते हैं गूगल में,
आपके लिए मिलता है, फिर उसका फिर आपका लॉन्ग टर्म में वेस्टेज हो जाता है। उस फिर सेकंड में साइबर सिक्योरिटी हो गया, सेकंड में फिर अगर जो कस्टमर से रिलेटेड उनका रहता है कि ज़्यादा इंश्योरेंस मिलना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा, तो वैसा इंश्योरेंस कंपनी पास जाते हैं जो ऑफर करते हैं ज़्यादा हाई प्रीमियम और हाई इंश्योरेंस क्लेम पैकेज, और उसके अंदर में जो पढ़ते नहीं, एस्ट्रिक के अंदर जो लिखा रहता है, तो अवेयरनेस नहीं रहता है विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक, वी कैन बी ब्रॉड एंड स्पेसिफिक एट द सेम टाइम। यस। तो इसमें कोई हम इंश्योरेंस लेते हैं उस टाइम पे कंज्यूमर जो रहता है उसने इंश्योरेंस ले लिया, कई बार पॉलिसीज को ऐड कराता है लेकिन बाद में बेनिफिट नहीं ले पाता, तो इस तरह से फोरम है जहाँ पर वो कंप्लेंट कर सके इनकी। हाँ, अभी ऐसे अभी तो आइडिया नहीं है, हो सकता है हर एक कंपनी का अलग अलग होगा, जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हो। यहाँ पर इसलिए बीमा सुगम है ना, कि एक ही प्रोटोकॉल, एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, जिसमें हर एक कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी विल ज्वाइन द प्रपोज प्लेटफॉर्म, और वो हर ग्रीवांसेस, क्लेम्स, रेड्रेसल सब चीज उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे। ये जो तो फोरम होता आसान है हो ना सचिन जी, ये हर जो इंश्योरेंस कंपनी आपको जहाँ से आप इंश्योरेंस लेते हो उनका अपना एक ग्रीवेंस हाँ, रिड्रेसल डिपार्टमेंट होता है, तो वही उनका फोरम होता है। और कभी मुझे कभी यूआई कॉल की नहीं बात करी तो उठाते हैं, यूआई का भी सुनना है। घुमाते हैं, कॉल नहीं उठाएंगे, या फिर तो अब इंश्योरेंस क्लेम करने जाओगे तो दोबारा से नया इंश्योरेंस भेज देंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसको डील मैं करने के लिए गवर्नमेंट आईआरडीए के ने किया। यहाँ पे कह रहा हूँ कि सीधा जैसे कोर्ट्स की तरफ जाते हैं न्याय के लिए, क्या इस तरह से कोई और भी है आईआरडीए कंज्यूमर है, कोर्ट्स? आईआरडीए यही रेगुलेट करते हैं, एक तरह के सेबी हो गए स्टॉक मार्केट, वैसे आईआरडीए हो गए इंश्योरेंस के लिए। और एक और भी डेजिग्नेशन होता है उसे, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। जैसे आरबीआई का ओम्बड्समैन होता है, ऐसे इंश्योरेंस में भी ओम्बड्समैन है जो आईआरडीआई की बिल्डिंग में ही बैठते हैं। और पीटी में क्वेश्चन भी था, सबसे ज्यादा इंश्योरेंस जीसीसी सबसे ज्यादा है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ज्यादा है इंडिया में, क्योंकि हम्म। जनरल इंश्योरेंस एज कम्पेयर टू लाइफ इंश्योरेंस। और महारत्ना कंपनी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। यहाँ जो ये कैपिटल वाला आर्टिकल है, इसमें हम बात कर सकते हैं कि इसीलिए इंडिया ने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, अभी हम पार्शली कन्वर्टेबिलिटी अलाउ करते हैं, क्योंकि अगर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कर देंगे तो जो अभी चैलेंजेस राइट। देखने को मिल रहे हैं वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि एफपीआई जो इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू पार्टिसिपेटरी नोट्स, वो एक लिमिट है, वो ऐसा नहीं कि वो कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम्म। इंडिया आंसर तो ईयू कार्बन टैक्स, ईयू का एक डिस्क्रिमिनेटरी रोल जिसको बोलते हैं, उनका रोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन टैक्स ऑन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। तो इंडिया कैसे कर सकते हैं, कैसे एक क्रिएट करते, तो टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट एंड वाटर कंजम्पशन, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रमोट कर सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसको यूज कर सकते हैं 3R इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल रीयूज, रिपेयर, रिसाइकलिंग इसको बोलते हैं। क्यों? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इट इज कंज्यूम्स हाईएस्ट नंबर ऑफ द वाटर इंटेंसिव सेक्टर है, 1.6 मिलियन लीटर। 4% ऑफ ऑल द फ्रेश वाटर इज यूज्ड इन टेक्सटाइल प्रोडक्ट। तब अब टेक्सटाइल को अगर आप लो कॉस्ट एफिशिएंसी बनाने के लिए, फिर ड्यूरेबिलिटी, सिंथेटिक टेक्सटाइल का यूज किया, जैसे हम लोग साइंस में ही पढ़े थे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयॉन। रेयॉन होता है इट इज हाइब्रिड, उसमें सिंथेटिक भी होते हैं और डिराइव नेचुरल फाइबर भी होता है। जो नायलॉन होते हैं, पॉलिएस्टर होते हैं, दे आर मोस्टली पूरे सिंथेटिक होते हैं। तो राइट। इसको यूज कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल लॉस कम है, फिर रीयूज कर सकते, फॉर एग्जांपल अभी प्लास्टिक वेस्ट एक ट्रेंड भी किया था फेसबुक और ट्विटर में, कि जो भी एग्जिस्टिंग क्लॉथ है उसको आप करके आप रजाई बना सकते हैं, या फिर ब्लैंकेट, या फिर डोर मैट एक्सेट्रा। तो लाइफ मिशन का एग्जांपल। एंड यहाँ पे जो बात हो रही है सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल की, तो उससे क्या हम्म। मतलब है हमारा? सर्कुलर मतलब कि आप जो काम कर रहे हो वापस से इसको रीयूज करेंगे, वापस से बेचने। फॉर एग्जांपल सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जांपल है सेकंड हैंड मार्केट, राइट फ्रॉम प्रोडक्ट टू कार्स, तो सब चीज सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल है। दूसरा प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉटल हुआ, प्लास्टिक बॉटल से फिर आप उसको रोड्स में यूज कर दिए, या फिर उसको जार बना दिए, घर में फिर उसको एक तरह से बाकी काम के लिए रख लेते हैं। तो आईटी तो सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जांपल। इंडिया एक्सपोर्ट ऑफ वोन क्लॉथ रैग $134 million। वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल है,
ज्योमेट्रिक इंडस्ट्री 2.3% ऑफ जीडीपी। इसलिए क्वेश्चन उठता है कि इंडिया में सिर्फ फार्मर पर परेशानी में नहीं है, हर जगह है। अगर ऑनलाइन न्यूज देखो तो इटली में भी, फ्रांस में भी, कनाडा में भी प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें जस्टिन ट्रूडो ने यूज किया था इमरजेंसी पावर। तो हर जगह तो ओवरऑल फार्मिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है। तो वो है कि इंडिया में सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, हर कंट्री में। जबकि इंडिया में तो सबसिस्टेंस है, लो लेबर प्रोडक्टिविटी है, हाई डिपेंडेंसी रेशियो है, लेबर बहुत ज्यादा है, इसमें 47% है। बाकी तो वहाँ के फॉर्म है तो हाईली मैकेनाइज, लेकिन वहाँ भी सब्सिडी मिलता है, वहाँ भी सरकार के द्वारा यूरिया सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, हर सब्सिडी मिलता है। जबकि 4% ऑफ जीडीपी बस यूएस के विथ रिस्पेक्ट ऑफ फार्मिंग। इंडिया में ज्यादा 17% है अप्रोक्सीमेटली। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल जो फार्मिंग सेक्टर है उनमें ग्रोथ करना मुश्किल होता है, 3 to 4% हाईएस्ट होता है, और इंडिया ग्रोथ कर ही है। दूसरा कि सेकंड पॉइंट होता है कि जो चेंज है, आप सर्विस सेक्टर को आप एक दिन के अंदर चेंज कर सकते हो कॉल करके। यहाँ दिल्ली में है तो उसका आप अगले दिन ही आप स्टैब्लिश कर सकते हो दूसरी जगह पर, हेडक्वार्टर पूरा चेंज हो सकता है सर्विस सेक्टर। लेकिन फार्मिंग सेक्टर में वो धीरे लगता है, क्रॉप यूज करने में 1 साल लगा, सोइंग पीरियड लंबा होता है, फिर कैसे वो इम्पैक्ट करेगा सोसाइटी को वो फिर टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही अप्लाई किया जाता है, तो उसमें बहुत समय लगता है, उसी कारण होता है। थर्ड है कि ओवरऑल की क्लाइमेट चेंज के कारण देयर इज अ क्राइसिस, कि सॉइल इरोजन, हाई यूज ऑफ यूरिया एक्सेट्रा, लीचिंग ऑफ सॉइल, तो अलग अलग एरिया। तो इसमें इंडिया का बात नहीं है, हर एक कंट्रीज में ऐसा। तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि जो करप्शन है प्राइवेट सेक्टर में कैसे होता है, कि एलएनटी के ऊपर 500, हाँ, एलएनटी वाज ऑर्डर टू पे 500 डिपॉजिट 500 फॉर सीरियस टेक्निकल एंड डिजाइन से डेफिशिएंसी, पीडब्ल्यूडी दिल्ली। ये बना बना था प्रगति मैदान, पूरे गंदे होगा लीकेज के कारण, मेंटेनेंस नहीं किया गया ना, एक्सेप्टेबल है। और कुछ जगह बोल दिया गया कि इट इज अनसेफ फॉर द पैसेंजर, अनसेफ भी, विजिबल ड्रेनेज ब्लॉकेज, लीकिंग, पॉट होल, लीकेज, क्रैक्स एक्सेट्रा। तो पेनल्टी तो डिटरेंट है कि वापस से नहीं कर सकते, लेकिन कैसे एक तरह से उसको प्रमोट कर सकते, कैसे हो ही नहीं। तो आई थिंक सबसे ज्यादा एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं प्रवेश, मानसी? कैन यू यहाँ पे रिपीट योर क्वेश्चन औषित? स्ट्रक्चर मतलब ये तो बनता डिफरेंट हो गया ना, 500 करोड़ दे हैव टू डिपॉजिट, ये डिफरेंट हो गया, अगले बार नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन पहले हो ही नहीं है। कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है। हाँ, तो हम बात करते हैं कि द रोल ऑफ जो जूनियर इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, तो पीरियोडिकली ऑडिट्स हो रहे हैं, स्ट्रक्चर जो बन रहा है एज पर द डिजाइन बन रहा है, और जो डिजाइन भी पहले बनाया गया क्या दैट इज, मतलब उसको क्लियरली पास किया गया नहीं किया गया, कि उसकी प्रॉपर स्क्रूटनी हुई कि नहीं हुई। तो इनिशियली जब कंस्ट्रक्शन फेज है उसमें ये सब एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, फिर हो सकता है कि जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है एक बड़ा बोर्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से, एलएनटी द्वारा बनाया गया, कि खराब भी होगा तो उनका ब्रांड वैल्यू पर क्वेश्चन उठे, तो अगर जो अच्छा बनेगा तो ऑडिट उसका की तारीफ। जो ऑडिट की अभी बात की मानसी ने, वो होती है ऑडिट, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, सेंट्रल विजिलेंस अथॉरिटी जो है 2003 के एक्ट से जो बनी है, उसका एक स्पेशल डिपार्टमेंट ही इसके लिए है कि जो पब्लिक कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग से जो चीजें बनी है उनकी विजिलेंस होगी। तो साल में तो रिपोर्ट भी जाती है पार्लियामेंट के अंदर। ऑडिट होती है तो हाँ, फिर उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है ना प्रवेश, की वो ऑडिटिंग मेथोडोलॉजी जो फॉलो की गई, क्या वो ट्रांसपेरेंट थी, क्या वो सही थी, क्या वो साइंटिफिक थी। वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए वो अकाउंटेबल है ना। डिस्कस इसमें इंपॉर्टेंट एसएफआई, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कंपनी से रिलेटेड जो भी रहता है